starting with the chapter 6, Asia, the largest continent. Okay, we will cover the topic location as well as the physical divisions of the Asia. Okay, the introduction, when we start with the introduction, we'll talk about the Asia. We all know the Asia is the largest and the most populous continent. Okay, and the second thing, it is located in the eastern and northern hemisphere. What does it mean? It's located in eastern and northern hemisphere. It means that when we have a globe, okay, we have a globe, and when we will divide it into east and west and north, it will lie in east and north hemisphere mostly. And further we will also discuss what are the exceptions also. Okay, and it consists of 48 countries, and it is divided into six regions. Okay, let's talk about the location above of the Asia. Latitude, ठीक है, तो latitude has the Asia is 10 degrees south to the 80-degree north. We have to learn it. It means it is extended from 10 degrees south to the 80-degree north. These are the latitude lines. We know that the latitudes are the imaginary lines to find the particular location. Okay, and the other thing is it is in the northern hemisphere, and mostly the Asia is in the northern hemisphere. Northern hemisphere means the top of the globe. If we have equator, the equator divides the earth into two parts, we all know about that, and above the part above the equator is the northern hemisphere, and the northern hemisphere includes the Asia. But some parts of the Indonesia are in the south region, so we have an exception here. Okay. Now the next is longitude. Longitude means there are also imaginary lines, okay, and it is in eastern hemisphere. Now what we does is we divide the globe into the vertical part. We divide the globe vertically. Okay, will be the right side will be the our west side, and the left side will be our east side. So the mostly Asia is in the east side. Okay, except some part of Russia is in the west side. Okay, and the latitude of the Asia is 25-degree east to the 170-degree east. Here we see the both things are in east. So we can say the mostly the Asia is located in the part of east. Now we'll talk about boundaries. Okay, from the north, from the north, Asia is surrounded by Arctic Ocean. Okay, and from the south, it is surrounded by Indian Ocean. And from the west, it is surrounded by Ural Mountains and the Ural rivers. We can say not surrounded by, it is differentiated from the Europe. It is just divided from the Europe by the Ural Mountains and the Ural River, as well as the Caspian Sea is also at the west, and the Pacific Ocean at the east. Now we have coastline. Coastline means the line, the part just attached to the ocean or the water bodies, we can say. Now it is a smooth coastline. Smooth means there are no uh, ups and downs, or we can say no zigzag in the coastline. टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, एकदम सीधी है, स्मूथ है, एक ही डायरेक्शन में चलती हुई है. We can say that. And the east coast, when we talk about the east coast, it has China Sea, Yellow Sea, and Sea of Japan. East में, at the east side, we have China Sea, Yellow Sea, and the Sea of Japan. And when we talk about the south, it has Bay of Bengal. When we talk about the south, it has Bay of Bengal, as well as it also has the Arabian Sea at the south. You can see here. At the northeast coast, it has the Sea of Augusta and
Bering Sea, the Sea of Okhotsk and Bering Sea. And the fifth part is island groups. Now the island groups are the Indonesia and the Philippines. The Japan also has the island groups, but mostly are the Indonesia and the Philippines. Now Southeast Asia जो island groups है ना, they Southeast और East Asia में ज्यादातर मिलते हैं. And जो सुमात्रा और जावा, these are the Sumatra and the Java. These are the largest, or we can say the largest island of Philippines. ये Philippines के island, sorry, Indonesian island. These are the Indonesian islands, sorry. Now, we are heading or moving towards a new topic, that is physical features. Okay, the most important thing is the Asia is divided into 5 physical features. Okay, what are that 5 physical features? The 5 physical features are the northern lowlands, central mountains, south plateaus, or the Great River Valley, and the island groups you can see here. Now, we'll discuss one by one about them. The northern lowlands. When we talk about the northern lowlands, they are made up of Siberian plain. What is Siberian plain? Siberian plain is a plain, or we can say a lowland. It is the largest lowland of the world. Okay, and the Turan plain. The Turan plain and the Siberian plain combinedly made the northern lowland. Okay, and when we talk about Turan plain is around the Aral Sea. It is around the Aral Sea. And Ob, Yenzi and Lena, they are most important rivers, or we can say the major rivers of this region, and they originate from Central Asia and they ends, or we can say they empty into the Arctic Ocean. They originate from Central Asia and empty into Arctic Ocean. Okay. Lake Baikal. When we talk about Lake Baikal, it is the deepest lake, not largest. It is the deepest lake that and it contains 20% of fresh water. 20% of fresh water of the globe. Okay. Now, when we talk about Turan Plain, it has two rivers, Amu Darya and Siar Darya. Amu Darya and Siar Darya. दे फ्लो इनटू अरल सी. ये दोनों रिवर्स जाके अरल सी में फ्लो या फिर हम बोल सकते हैं ड्रेन हो जाती है. ओके, नेक्स्ट इज सेंट्रल माउंटेन. सेंट्रल माउंटेन्स की जब हम बात करें, दे आर द कॉम्प्लेक्स सिस्टम. कॉम्प्लेक्स सिस्टम यानी कि ये बहुत रफ या फिर डायरेक्ट नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये. और फोल्ड माउंटेन्स आर द बहुत पुराने पुराने माउंटेन्स. ओके, कोर ऑफ माउंटेन सिस्टम ऑफ ओशिया. कोर यानी कि सेंटर है ये एक, यहीं से सारे माउंटेन शुरू होते हैं. ठीक है, साउथ ऑफ सेंट्रल एशिया के सारे माउंटेन्स इधर से ही शुरू होते हैं. ठीक है, और रेंजेस रेडिएट. रेंजेस में यानी कि एक माउंटेन है, अगर माउंटेन्स 10 to 15 या 5 और 6 माउंटेन्स एक ही साथ लगे हुए हैं तो वी कॉल देम एज रेंज. ओके, द रेंज radiate from means they start from, or we can say they emerge from Pamir Knot. Okay, what is Pamir Knot? Pamir Knot is area from where the different ranges emerge or the radiate, and we have three main ranges: Himalayas, Karakoram and Hindu Kush. Himalayas is the largest range and it also contains the highest peak of the world, that is Mount Everest. Mount Everest. These all ranges have some intermountain plateaus as plateau of Iran and plateau of India. We can say the plateau of Iran and there are intermountain plateau. Intermountain plateau मतलब एक माउंटेन है और एक और माउंटेन है, उन दोनों माउंटेन के बीच में जब एक प्लेटो आ जाए तो उसे हम एक इंटर माउंटेन प्लेटो कह देते हैं. जब दो या दो से ज्यादा माउंटेन के बीच में एक प्लेटो आ जाए उसे इंटर माउंटेन प्लेटो कह देते हैं. सदर्न प्लेटो की जब हम बात करें, चलो सदर्न प्लेटो क्या है? ये सेंट्रल पार्ट में, सेंट्रल जो हमने सेंट्रल माउंटेन्स पढ़े थे ना, उनके साउथ पार्ट में मिलते हैं और ये साउथ एशिया में मिलते हैं. फॉर्म्ड बाय क्रिस्टलाइन एंड ओल्ड रॉक्स. ओल्ड और क्रिस्टलाइन रॉक से फॉर्म्ड होते हैं. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटोज that we have to remember are Peninsular Plateau of India, Plateau of Arabia, Plateau of Mongolia, and the Plateau of Tibet. And the Plateau of Tibet is also known as the roof of the world.
Okay, these are the important plateaus. Let's repeat them. Peninsular Plateau of India, Plateau of Arabia, Plateau of Mongolia, Plateau of Tibet. Plateau of Tibet is also known as the roof of the world. Now the Great River Valleys. When we talk about the Great River Valleys, they are made up of vast stretch of fertile alluvial land. Fertile alluvial land means when a river is going, okay, and when a river is going, it carries some sediments. It carries some sediment. When अपन जब एक रिवर जा रही है तो उसके अंदर वो कुछ ना कुछ पार्टिकल सेडिमेंट्स लेके जा रही होती है. तो जब एक रिवर अपने साथ जब पार्टिकल्स और सेडिमेंट लेके जा रही होती है, जब उस रिवर का फ्लो धीमा हो जाता है तो वो सारे सेडिमेंट्स वो साइड में छोड़ जाती है. तो उससे हमारे पास एक लैंड बनता है, फर्टाइल लैंड बनता है, जिसे हम एलुवियल सॉइल, एलुवियल प्लेन कहते हैं. और ये बहुत लंबा लैंड है, इसीलिए हम बोलते हैं वास्ट स्ट्रेच. इसीलिए बोला है इधर वास्ट स्ट्रेच ऑफ फर्टाइल एलुवियल लैंड. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन एंड इट इज द थिकली पॉपुलेटेड. अब सीधी बात है, अगर यहाँ पे रिवर है, इतना मतलब एग्रीकल्चर के लिए भी ये लैंड अच्छा है, तो यहाँ पे थिकली पॉपुलेटेड सिचुएशन होगी. एंड इवन जो फर्स्ट सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन civilization, Indus Valley civilization, Mesopotamian civilization, these were also found in this region only. Now we will talk about the different types of river valleys. First is valley of Euphrates and Tigris. यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस. इट इज नोन एज मेसोपोटामिया. इसको मेसोपोटामिया बोलते हैं. मेसोपोटामिया का मतलब होता है बिटवीन टू रिवर्स. अब ये रिवर्स जो है वो यूफ्रेट्स है और टिग्रिस, ये दोनों रिवर्स एक वैली बनाती है जिसे वैली ऑफ यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस बोलते हैं. और ये दोनों रिवर्स कौन सी, यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस, ये दोनों पर्शियन गल्फ में जाके ड्रेन हो जाती है. अब हम बात करेंगे वैली ऑफ इंडस की. इंडस वैली जो है ये इंडस रिवर से बनी है. इंडस रिवर बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है. और ये इंडस वैली, ये जो इंडस वैली है ना, दैट कवर्स द पार्ट ऑफ इंडिया, पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड पार्ट ऑफ पंजाब. इंडिया का थोड़ा सा पंजाब और पाकिस्तान को कवर करती है ये, ठीक है. और इंडस रिवर की कुछ ट्रिब्यूटरीज है, 5 ट्रिब्यूटरीज है बेसिकली. पेन, चेनाब, झेलम, बीन, सतलज एंड रावी. Okay, then we'll talk about Valley of गंगा ब्रह्मपुत्र. गंगा ब्रह्मपुत्र वैली के बारे में पढ़ेंगे. दे आर ऑरिजिनेट फ्रॉम इंडस रिवर. इंडस वैली जो है हमारे पास ईस्ट में होती है. ईस्ट में इंडस वैली से, सॉरी, वेस्ट में इंडस वैली वेस्ट में होती है. वेस्ट में इंडस वैली से ईस्ट में ब्रह्मपुत्र तक ये फैली हुई है, ठीक है. और फिर बात करें ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना, चाइना के ग्रेट प्लेन की, तो इसकी 3 रिवर्स है. देखो, प्लेन्स जो होते हैं, ये वैलीज है, रिवर्स से बनी हुई है, ठीक है. तो इनकी रिवर्स के जो तीन रिवर्स है, इनके नाम है वांग हो, येंसे कियांग एंड शिक्यांग. वांग हो, येंसे कियांग एंड शिक्यांग. नाउ द लास्ट पार्ट इज आइलैंड ग्रुप्स. ओके, आइलैंड ग्रुप्स की जब हम बात करें तो आइलैंड ग्रुप्स बने कहते हैं. दे आर मेड अप ऑफ अनसबमर्ज्ड पार्ट ऑफ फोल्ड माउंटेन्स. जो पुराने पुराने माउंटेन्स है, फोल्ड माउंटेन्स है, उन माउंटेन्स जो अभी तक डूबे नहीं है, वो जो अनसमर्ज है, इनकी जो पानी में डूबे नहीं है, कुछ डूब गए हैं, कुछ नहीं डूबे, कुछ डूब गए हैं, कुछ नहीं डूबे. फोल्ड माउंटेन्स बेसिकली नए माउंटेन्स भी होते हैं जो बहुत पुराने समय से होते हैं, और अभी नए नए को भी हम फोल्ड माउंटेन्स बोलते हैं. तो जो फोल्ड माउंटेन्स है, ये अनसबमर्ज्ड पार्ट ऑफ फोल्ड माउंटेन से बने हुए हैं. यानी कि जो फोल्ड माउंटेन्स जो डूबे नहीं है, उनसे ये बने हुए हैं. और 3 हमने पढ़े थे, इंडोनेशिया, फिलीपींस तो हमने पढ़े ही थे, साथ साथ जापान भी है. ओके, लेट्स टेक अ क्विक रिकैप इन 1 मिनट व्हाट वी हैव स्टडीड. हमने पढ़ा कि एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मतलब पॉपुलस है, यानी पॉपुलेशन बहुत है इसमें. ज्यादातर ईस्टर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में मिलता है. 48 कंट्रीज है, 6 रीजन्स हैं जो हमने पढ़ भी लिए. और इसकी लोकेशन की बात करें तो लैटिट्यूड में ये नॉर्दर्न प्लेन में है, 10 डिग्री साउथ, 80 डिग्री नॉर्थ है. और कुछ पार्ट्स इसके इंडोनेशिया में भी है, साउथ में इंडोनेशिया में भी है. और लॉन्गिट्यूड की बात करें जो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है, और कुछ पार्ट रशिया के हैं जो कि वेस्ट में भी चले जाते हैं. और इसकी अगर हम लॉन्गिट्यूड बात करें
लॉन्गिट्यूडिनल वैल्यू 25 डिग्री ईस्ट टू 170 डिग्री ईस्ट है। और बाउंड्रीज की बात करें तो नॉर्थ में आर्टिक सर्कल, ईस्ट में पैसिफिक ओशियन, साउथ में इंडियन ओशियन, वेस्ट में यूरल माउंटेन और यूरल रिवर और कैस्पियन सी है। कोस्ट लाइन की बात करें, कोस्ट लाइन स्मूथ है, स्मूथ मतलब ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, zigzag नहीं है। ईस्ट कोस्ट में चाइना सी, येलो सी एंड सी ऑफ जापान है। साउथ में बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी है। नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में हमारे पास सी ऑफ ओक्सटो है एंड बेडलिंग सी है। फिफ्थ पार्ट आइलैंड्स आ जाएगा। आइलैंड्स हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया में है और जो इंडोनेशिया और फिलीपींस बेसिकली आइलैंड ग्रुप्स बनाते हैं। सुमात्रा और जावा ये इंडोनेशिया के कुछ लार्ज आइलैंड ग्रुप्स हैं। फिजिकल फीचर्स की बात करें, 5 फिजिकल फीचर्स है। नॉर्दर्न लॉउलैंड, सेंट्रल माउंटेन्स, सदर्न प्लेटोज एंड ग्रेट रिवर वैलीज एंड आइलैंड ग्रुप्स। नॉर्दर्न लॉउलैंड की बात करें, ये साइबेरियन प्लेटो जो कि लार्जेस्ट प्लेटो है, सॉरी साइबेरियन प्लेन जो कि लार्जेस्ट प्लेन है, लार्जेस्ट लोलैंड है, और टूरान प्लेन जो कि अरल सी के पास है, इन दोनों से मिलके बना है। इसकी दो मेजर रिवर्स है, ओबियंसी और लेना। ये सेंट्रल एशिया से स्टार्ट होती है रिवर्स और आर्टिक ओशियन में जाके एम्प्टी हो जाती है। लेक बैकाल इसी में आती है जो कि डीपेस्ट लेक है, 1637 मीटर की, 20% ऑफ फ्रेश वाटर होल्डिंग करती है। तुरान प्लेन की दो रिवर्स है, अमू दारिया, सियार दारिया, ये ड्रेन हो जाती है अरल सी में। सेंट्रल माउंटेन्स की बात करें, सेंट्रल माउंटेन्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम है फोल्ड माउंटेन्स का, ये कोर बनाते हैं इस सेंट्रल एशिया के लिए। और इधर से एक पामीर नॉट एक रीजन है जहां से सारे माउंटेन रेंजेस रेडिएट होते हैं, यानी स्प्रेड आउट होते हैं। हमारे पास पामीर नॉट से 3 निकलने वाले रेंजेस हैं, हिमालयास, काराकोरम, हिंदू कुश। हिमालयास लार्जेस्ट है, इसमें माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक भी है। इन सब के बीच में इंटरमॉन्टेन प्लेटोस है, लाइक प्लेटो ऑफ ईरान एंड प्लेटो ऑफ इंडिया। सदर्न प्लेटो की जब हम बात करें, सदर्न प्लेटो साउथ में मिलते हैं, किनके, सेंट्रल माउंटेन्स के, और साउथ एशिया में मिलते हैं। फॉर्म्ड होते हैं ये लॉक्ड ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक से। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, पेनिसुलर प्लेटो ऑफ इंडिया, प्लेटो ऑफ अरेबिया, प्लेटो ऑफ मंगोलिया, प्लेटो ऑफ तिब्बत, जिसको हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। ग्रेट रिवर वैलीज की बात करें, ग्रेट रिवर वैलीज बहुत लंबे लंबे एलुवियल प्लेन से बनी हुई है, थिकली पॉपुलेटेड है। क्यों थिकली पॉपुलेटेड है? क्योंकि इधर रिवर्स है, फर्टाइल लैंड है, इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। और इसमें हमारे पास 4 रिवर वैलीज हम पढ़ी है, जो कि है यूप्रेट्स और टिग्रिस। जो यूप्रेट्स और टिग्रिस रिवर से बनी है, मेसोपोटामिया भी कहते हैं ऐसे। यूप्रेट्स और टिग्रिस पर्शियन गल्फ में जाके फ्लो कर जाती है। अब वैली ऑफ इंडस की बात करें, ये इंडस रिवर से बनी है। इंडस की ट्रिब्यूटरीज अभी सिनाब, झेलम, बीस और सतलज है। वैली ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र की बात करें, जो कि इंडस वैली से वेस्ट से ब्रह्मपुत्र के ईस्ट तक फैली हुई है। और जब ग्रेट प्लेन ऑफ चाइना की बात करें, इसके 3 रिवर्स है, हुआंग हू, येनसिक यांग और शिकियांग। आइलैंड ग्रुप्स की बात करें तो आइलैंड ग्रुप्स इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान बनाते हैं, जो कि अनसमर्ज्ड पार्ट है, जो डूबे नहीं है अब तक फोल्ड माउंटेन्स के। दिस वाज फॉर द ऑल टुडे, एंड हैव वी एंड विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर।